Good morning, students. Today we will read lesson 6 of civics. Rural administration means गांव का प्रशासन. In this part we will read about a quarrel in the village. गांव के एक झगड़े के बारे में पढ़ेंगे. एंड एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंडर, एक पुलिस स्टेशन के अंडर कैसे कितना एरिया डिवाइड किया जाता है. एंड द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में काम कैसे किया जाता है. नाउ वी विल रीड इन डिटेल अबाउट दीज पॉइंट्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. A quarrel in the village. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. मोहन एक किसान है. उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है. उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है. दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं. वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट. बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. Mohan was angry but also a little frightened. Raghu's family owned many fields and besides, his uncle was also the sarpanch of the village. But even so, he plucked up courage and went to Raghu's house. एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था. ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बड़ा कर लिया. मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था. रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी. इसके अलावा उसके ताऊ ज़मीन के गांव के सरपंच थे. फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया. दोनों के बीच कहा सुनी हुई. रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था. थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया. A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. He was badly hurt on his head and hand. He was given first aid by one of the neighbors. His friend, who also ran the village post office, suggested that they go to the local police station and file a report. Others were doubtful if this was a good idea, but because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. रघु ने क्या किया? झगड़ा किया. रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया. दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे. फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू किया. शोर सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए. उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है. बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया. मोहन के सिर और हाथ पर बहुत चोटें आई. एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की. मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे. उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकला. कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे. After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. काफ़ी डिस्कशन के बाद, विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा. Area of the police station. On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? It is not a question of money. We can register the case only in the police station because our village comes in its area of work," explained Mohan. "Every police station has an area that comes under its control. All person in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take an action on the cases within its area." थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, "क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर में बड़े थाने चले?" मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है.
हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में होता है, और सभी पर्सन जितने भी उस एरिया में आते हैं उनको अपने केस उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाने होते हैं, चाहे वो चोट लगने के हो, एक्सीडेंट के हो, झगड़े के हो या चोरी के हो। और उस पुलिस स्टेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस केस को इंक्वायर यानी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे और उस केस के अकॉर्डिंग एक्शन ले। The work at the police station. When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what had happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. Mohan was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went and called his neighbors into the office. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them, and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. They insisted that the case be registered. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर आया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे बचाने ना आते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके पास पहुंचेगा।